Hello students, in this video we will be discussing about some of the important electrodes called as reference electrodes. So what is the meaning of reference electrodes? Very simple guys, as the name implies, reference. Reference means what? We have tried to design the electrodes with respect to one particular substance, isn't it? That particular substance according to which all other electrodes are supposed to be made, isn't it? Such kind of design or such kind of substance is actually referred as a reference. In this kind of electrodes we will call it as reference electrodes. Just like I can give an example that some may ask what should be the size of or what should be the length of this 1 meter rod. We know that 1 meter is length, isn't it? Unit length in SI units. But some may ask us what exactly should be the length of 1 meter. Then generally we refer to that, platinum iridium alloy, which is kept at, one of the labs at London, isn't it? The size of that rod, which is made up of platinum and iridium and kept at that lab in London, some lab kind of lab, is actually referred as that 1 meter. So वहां से from that instant we say that this size is actually referred as 1 meter. इतना 1 meter है, इसका डबल होगा तो 2 मीटर, इसका ट्रिपल होगा तो 3 मीटर, ऐसे करके बोलते हैं. So that substance is actually referred as a reference. For everything we do in this world, materialistic world, we use this word reference. Everything is referred, isn't it? Suppose some people say that you have got 6th rank in the class. That means what? He is getting referred to the first person who has got the topmost marks on the class, isn't it? So therefore, in order to calculate the electrode potentials of electrodes which are made up of different other metals or non-metals, isn't it? That generally metals or gases, generally as you see in halogens, bromine, chlorine and all, isn't it? The reference the electrode potentials of that electrodes can be referred with respect to some reference electrodes, है ना? So first reference electrode which we are going to discuss here is the standard hydrogen electrode. Okay, so what is the standard hydrogen electrode? As the name implies, shortly it is called as CSHE. Okay, standard hydrogen electrode. So why it is called a standard hydrogen electrode? And this standard word is mostly or frequently used in chemistry, and this generally refers to the conditions of temperature and pressure in which this reference is made or this substance is kept. So generally we refer standard temperature and pressure as standard conditions, isn't it? So standard temperature is 298 Kelvin, isn't it? I mean, according to thermodynamics, or according to the conditions in a room or in a room temperature or where the experiments are done, and your pressure is 1 atm. And if you say that if you want to calculate this all these laws and all without respect to thermodynamics, then really the standard temperature is referred as a 273 Kelvin and 1 atm pressure, isn't it? Standard pressure. So whatever, here because we are calculating at 298 Kelvin, because we refer the electrochemical series at 298 Kelvin, 25 degrees Celsius, generally which is referred as the room temperature, isn't it? So in that condition, and pressure of 1 atm, pressure at 1 atm, what we do is consider an electrode. As we know that electrode has two conditions or two processes which it can take place, just like it can undergo oxidation or it can undergo reduction, isn't it? So both are possible. So in this type of electrode where hydrogen is there, what we can do is we can put a solution, acidic solution generally. So जिसके अंदर generally एक acid का medium रहता है, generally H2SO4 को डाला जाता है, and its concentration is 1 molar. H3O plus means what? H2O plus refers to mixture of H2O and H plus. Water है, water के साथ साथ आपका H plus acidic medium भी है, isn't it? So that is kept. And there is a platinum black electrode. Why it is taken as platinum? Why not other metals? Because platinum is actually referred as an inert electrode. We don't want the electrode to participate in chemical reaction. Now the point is we are using hydrogen gas, inserting hydrogen gas at 1 atm. So we have two equations which are possible here. We can see here that hydrogen gas which is entering into can convert into 2H plus, है ना? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कुछ नहीं है, मीन्स व्हाट, 0. नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू +1.
ऐसे 2 हाइड्रोजन के लिए 0, 2 हाइड्रोजन के लिए +1, तो टोटल चेंज कितना हो गया? 0 से 2 हाइड्रोजन के लिए कितना है? 2 इंटू +1, एक हाइड्रोजन के लिए अगर +1 होगा तो 2 हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +2। सो 0 से 2 चेंज इन कितना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2, इजंट इट? सो वैसे ये क्या हो सकता है? 0 से 2 तक बढ़ सकता है, एक के लिए +1, 2 के लिए +2, है ना? सो 2 के लिए देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 के लिए देखना ही पड़ेगा, अंडरस्टूड? ना यहाँ पे कितना है? चेंज 2, और यहाँ पे भी जनरली इसको कैसे लिखना चाहिए था मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हम डिस्कस भी किए थे। जनरली इसको ऐसे लिखना चाहिए था, हाफ H2, और जैसे हमारे एनसाइड में ऐसे लिखा गया है H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? हाफ H2 मतलब एक हाइड्रोजन है ना, तो एक के लिए लिखा जाता है, लेकिन इसको हाफ को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 2 से जब मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ये दोनों कैंसिल हो गए, H2 जैसे था वैसे रह गया, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2H प्लस, और ये बन गया 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए? नाउ द पॉइंट हियर आई वांट टू मेक इज, यहाँ पे 0 से +2 तक बढ़ा, मीन्स व्हाट? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है वो पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, ठीक है? एंड दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि सॉल्यूशन में जो आपको H प्लस, सॉल्यूशन में जो H प्लस आयंस हैं वो वापस क्या बन सकते हैं? हाइड्रोजन, H2 गैस बन सकते हैं। सॉल्यूशन में जो H प्लस आयंस हैं वापस क्या बन सकते हैं? हाइड्रोजन गैस बन सकते हैं। तो इसलिए H प्लस जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके H2 भी बन सकता है, दोनों पॉसिबल है। गैस से गैस आएगा H2 और अंदर जाएगा H प्लस के रूप में, या H प्लस जो सॉल्यूशन में है वो भी पीछे आके गैस बन सकता है। दैट मीन्स व्हाट? इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, पहला केस में 0 से +2, और दूसरा केस में +2 से 0, ऑपोजिट रिडक्शन भी हो सकता है। सो इसलिए जब दोनों हो सकता है, हम ये दोनों को अगर होगा भी, ये हमारा वैल्यू, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग आर्बिट्रली मतलब जानबूझ के हम इसको 0 करके फिक्स किया है। कितना है? 0 वोल्ट। जानबूझ के हम इसको कितना में फिक्स किए हैं? 0 वोल्ट। किसका? हाइड्रोजन का। हमेशा याद रखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग रेफरेंस जैसे यूज करना चाहते हैं उसको हम लोग हमेशा 0 पे रखते हैं। तो आप पूछेंगे सर क्यों? क्यों ऐसे नहीं रखने से नहीं चलेगा सर? 0 ये सर इंसाफी हो गया, इसके लिए 0 बाकी सबके ज़्यादा, ऐसे कैसे हो सकता है सर? ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो भैया, हम अगर 0 नहीं करेंगे तो हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। जैसे कि देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक, जिंक का निकालना चाहेंगे। किसका? जिंक का। तो आपको पता नहीं जिंक का कितना है, आपको पता नहीं, तो आप क्या करना चाहोगे? ऑब्वियसली आप किसी का भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जानने के लिए यू हैव टू यूज व्हाट? इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना? तो आप क्या करोगे? एक कंटेनर में जिंक का सॉल्यूशन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? जिंक का इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? और एक कंटेनर में आप जैसे हाइड्रोजन को रखे थे ना वैसे हाइड्रोजन को रखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? पूरा डिजाइन नहीं बना रहा हूँ, समझ जाए कि आपका SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे आपका जिंक है, ठीक है? मान लीजिए जिंक का इलेक्ट्रोड, आप इसको ZnSO4 समझ सकते हैं, ZnCl2 समझ सकते हैं, जो मन है आपको उसको समझ सकते हैं। एंड यू नो क्या करते हैं हम लोग? सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं ना, जनरली जब दोनों को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग सॉल्ट ब्रिज को हम लोग सर्किट यूज़ करके सर्किट को कंप्लीट करते हैं। एंड इसके अंदर क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है गाइस? 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है? ये रखते हैं ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ द पॉइंट इज, जब हम ये दोनों को कनेक्ट करेंगे एंड ये दोनों कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है गाइस? व्हाट इज द यूज ऑफ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द वोल्टेज क्रिएटेड। वोल्टेज का दूसरा नाम जो क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम लोग इसको EMF शॉर्टकट में बोलते हैं, है ना? सो नाउ द पॉइंट इज, हम ये जब दोनों को लगाएंगे हम यहाँ पे क्या होगा? एक वोल्टेज दिखाएगा। ये जो वोल्टेज दिखाएगा, देखिए मान लीजिए सपोज जिंक एंड हाइड्रोजन को लगा जाएगा। आपको पता है जिंक एंड हाइड्रोजन को जब लगाएंगे, मैं आपको बताया था कि हाइड्रोजन के पास दोनों टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रेड्यूस भी हो सकता है। जिंक को जब लगाएंगे तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रेड्यूस भी हो सकता है। तो जब जिंक एंड हाइड्रोजन को लगाया गया था, जब लगाया गया था तो क्या हुआ? जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। मैं आपको बताया कि एक का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा क्या होगा? रिडक्शन होगा। उनका नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड आपको इतना याद रखना है कि दोनों मिलके एक रिडॉक्स कपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस? रिडॉक्स कपल बनाते हैं। रिडॉक्स कपल मतलब क्या है?
ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कपल नहीं है। रिडॉक्स कपल मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कपल है। किस किस का, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मिलाएंगे तो क्या होगा, रेडॉक्स, रेड प्लस ऑक्स, है ना। लाल क्या बोलते हैं इसको, बेल, बेल ना, भेल, भेल, मेल फॉर्म ऑफ काउ। सो रेडॉक्स, रेडॉक्स कपल, रेडॉक्स कपल में क्या होता है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। उनका नेचर है गाइस। अब बोलेंगे सर ऐसे क्यों हो रहा है, उल्टा भी हो सकता था लेकिन हो नहीं रहा है। You know what, chemistry is about the study. It's happening like that. There is a reason. What is the reason? That the reason is that zinc is having higher ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अपने के पास ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है इसलिए ऑक्सीडाइज हो जा रहा है ना। अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन पर टेंडेंसी है, तो जिंक अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज जिंक इज हैविंग मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप उल्टा भी समझ सकते हैं, हाइड्रोजन के पास ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए वो रिड्यूस हो गया। अगर वो रिड्यूस हो गया तो जिंक को क्या होना पड़ा, ऑक्सीडाइज होना ही पड़ा। समझ गए। जब दोनों का ऐसे हुआ तो हम क्या करते हैं, जनरली आपको पता है, अगर ये आपका गैल्वेनिक सेल है, कौन सा सेल है आपका, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है गाइस, केमिकल रिएक्शन से या केमिकल एनर्जी जो है वो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर हम जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, हम लोग जो लिखते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल को हम लोग कैसे लिखते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे लिखते हैं ना। ई कैथोड कौन है, जहाँ पे रिडक्शन होता है। कैथोड कहाँ होता है, कौन होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है। एनोड कौन है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। हमेशा याद रखिए, एनोड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं मानते हैं गाइस। एनोड कैथोड मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव से नहीं मानते हैं, बल्कि एनोड मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड मतलब जहाँ पे रिडक्शन होता है। दिमाग में रख लीजिए, वो चाहे गैल्वेनिक सेल हो या आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, जहाँ पे गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, वेयरएज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है प्रीवियस वीडियोस में, है ना। तो द पॉइंट इज, आपको जब कैथोड एनोड मेंशन कर रहे हो, देन यू हैव टू मेंशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, यस, तो ये गैल्वेनिक सेल के लिए कैथोड माइनस एनोड करेंगे। कैथोड मतलब रिडक्शन यहाँ पे होता है, एनोड मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जिंक का लिखोगे। तो ई पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक का जो ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहाँ पे जो ई सी माइनस ये लिख रहे हैं, क्या है गाइस, आप क्या निकालना चाहते हो, ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब हमेशा किस में रहता है, एसआरपी का टर्म्स में रहता है। वो क्या क्या हो सकता था, एसआरपी भी हो सकता था, एसओपी भी हो सकता है, लेकिन आईयूपीएस ने क्या बताया कि आपको जितना भी डीलिंग्स है सबके सब आप एसआरपी में रखना चाहेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि पूरा दुनिया के लिए अच्छा होगा आपको अगर कॉमन टर्म एसआरपी है। ठीक है, तो टू इरेडिकेट कंफ्यूजन एसआरपी रखा गया। तो कैथोड में आपका एसआरपी भी होगा, एनोड में आपका एसआरपी में भी होगा। तो ये जो कैथोड का एसआरपी आपको पता है क्या, डू यू नो द एसआरपी ऑफ द कैथोड, नहीं पता, तो आप क्या करोगे, ई आप क्या लिखोगे, जिंक लिखोगे। जिंक का क्या हो रहा है गाइस, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप क्या, सॉरी ये रिडक्शन, कैथोड मतलब रिडक्शन ना, जिंक नहीं लिखना चाहिए था आपको, क्या लिखना चाहिए था, हाइड्रोजन लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो आप हाइड्रोजन लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है गाइस, रिडक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का जब रिडक्शन होता है तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, हाइड्रोजन का जब रिडक्शन है तो हाइड्रोजन, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, ये वाला ना, रिड्यूस हो रहा है ना, तो क्या यूज करोगे, H प्लस, एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू H2। रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, +1 से 0, हाफ H2 होगा, है ना, आधा H2, ऐसे होगा ना। एक ही H प्लस दिख रहा है ना आपको, तो एक ही हाइड्रोजन तो एक ही बनाना पड़ेगा, तो 2 का आधा कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाई करने से 2 का आधा होगा जो कि 1 होगा। सो +1 से आपका 0 हो रहा है, क्या हो रहा है गाइस, रिड्यूस हो रहा है। तो ये रिएक्शन में देखिए, तो ये रिएक्शन आप जब कंसिडर कर रहे हो तो कहाँ से कहाँ तक कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस से H2 कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैथोड में H प्लस से कन्वर्ट हो रहा है बेचारा H2 जैसे, माइनस एनोड, एनोड में कौन है, जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ये 2 से मल्टीप्लाई जनरली नहीं करना चाहिए, बाद में करोगे, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही इलेक्ट्रॉन का होता है ट्रांसफर। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ये ओरिजिनल रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे आप लिखे, ऐसे जब लिख लिए, आपको पता है कि ईएम ऑफ द सेल जो है, आपने जो सेल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड जिंक, तो यहाँ पे जो V है ना, वोल्ट मीटर आपको क्या बता देगा, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है आपको क्या बता देगा, ईएमएफ का बता देगा, यही ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
जो क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में, ये जो आपका EMF के बारे में बता देगा। मान लीजिए इसका वैल्यू कितना आया था, अराउंड 0.76 वोल्ट ऐसे आया था, है ना। एक्सपेरिमेंटली ऑलरेडी हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हो गया है, हम इसलिए निकाल रहे हैं इसका, है ना। ऐसे निकाले थे करके मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। सो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना आपको पता है क्या? आपको पता नहीं, हाँ, बट पता नहीं, लेकिन आपने पहले एज्यूम करके रखा। अभी अभी हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, आर्बिट्रली हम लोग इसको कितना माना है, 0 वोल्ट मान के रखा है ना। 0 वोल्ट जब मान के रखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 मान लेंगे। और जिंक आपको पता है, पता नहीं, इसको निकालना चाहते हैं एक्स। एंड यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर से एम ऑफ द सेल मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? वोल्ट मीटर से। कभी कभी वोल्टा मीटर भी बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट, वोल्टेज से वोल्टा बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर से कितना मिल गया हमारा वैल्यू? 0.76। तो x जो था, जिंक आपको पता नहीं था, तो x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। x कौन है? x कोई नहीं है, आपको जिंक है। जिंक का जो हाँ, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। हम मानते हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। देखिए, जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन के रूप में लिखना चाहिए था ऐसे। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताया कि आपको जब EMF ऑफ द सेल SRP में चाहिए, किस में चाहिए? SRP में। IUPAC बता के रखा है क्या SRP में चाहिए। तो आप इसको जब +1 से 0 कर रहे हो, जब इसको कैथोड को SRP में रख रहे हो, तो एनोड को भी किस में रखना पड़ेगा? SRP में ही रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा? SRP में ही रखना पड़ेगा। तो आपने जब SRP निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन का सिंबल दे दिया ना, तो सिंबल से थोड़ा चेंज कर दीजिए, बाकी सब ठीक है, फॉर्मूला कुछ वगैरह प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंबल चेंज कर दीजिए, 2 से क्या हो रहेगा? 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल Zn2+ से जिंक जो है वो कितना वैल्यू है? -0.76 वोल्ट। समझ गए? तो अभी जिंक का मिल गया ना। तो आपने हाइड्रोजन को रेफरेंस जैसे यहाँ पे यूज किया और जिंक का निकाल दिया। वैसे आप जिसका चाहिए आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। कॉपर का चाहिए तो कॉपर एंड किसको कनेक्ट करेंगे? हाइड्रोजन को कनेक्ट करेंगे। तो कॉपर एंड हाइड्रोजन को जब कनेक्ट करेंगे सेल बनाने के लिए, तो जनरली क्या होता है पता है? हाइड्रोजन का कॉपर का रिडक्शन हो जाता है, कॉपर का रिडक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। आप उसका दोनों का मिला के गैल्वेनिक सेल बना के ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। गार्बनिक सेल बना के ट्राई करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर एंड हाइड्रोजन जब रखेंगे तो कॉपर रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो सर आप कैसे बता पा रहे हैं? देखिए सब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। मैं इसे आप बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है। इवन फ्रॉम दिस ओनली द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज मेड। इसी से, ये डाटा से सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर किए तो सबका वैल्यू निकला। वो जो वैल्यू निकला वहीं से आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना गया है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आपको शॉर्टकट भी दिया था। आपको अगर अच्छा है, आपको अगर याद है सबके सब तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं तो यू कैन गो टू दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड यू कैन सी, है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। सो यहाँ पे देखिए, यस, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पूरा यहाँ पे है। सो एवरीथिंग इज देयर हियर। थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो हमें अभी किसके बारे में देख रहे थे? जिंक के बारे में देख रहे थे। किसके बारे में देख रहे थे? जिंक के बारे में देख रहे थे। तो जिंक का हमने क्या निकाला? जिंक का क्या निकाला? देखिए जिंक यहाँ पर है, जिंक का हमने SRP निकाला, है ना। SRP क्यों निकाला? SOP क्यों नहीं निकाला? क्योंकि IUPAC ने बोल रखा है कि सबके सब SRP में होना चाहिए। एंड पूरा के पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किससे बना हुआ है? SRP से ही बना हुआ है ना। तो ये जो SRP से बना हुआ है, आप देखिए जिंक का वैल्यू कितना है। जिंक का वैल्यू है -0.76। हमें वही आया था ना, -0.76। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वी गॉट दैट ओनली। देखिए यस, एक्स का वैल्यू कितना आया था? -0.76, है ना। तो वैसे कॉपर का करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो? कॉपर का निकाल सकते हो। कॉपर का जनरली 0.34 है ना। तो कॉपर का देखिए आप निकल जाएगा यहाँ पे, कॉपर का Cu देखिए यहाँ पे 0.34 +0.34 दिख रहा है ना। सो वैसा है। सो यहाँ से जो निकाला गया है उसी के हिसाब से आपका पूरा के पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबके साथ कंपेयर किया गया। हाइड्रोजन यहाँ पे है जिसका वैल्यू 0 है, इसके साथ सबका कंपेयर किया गया। ऊपर का वैल्यूज नीचे का वैल्यूज कंपेयर किया गया, उसके हिसाब से सीरीज बना गया है। समझ गए ना। सो देयरफॉर हाइड्रोजन आपको ऐसे हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्लियर? समझ में आ गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? ओके, नेक्स्ट गाइस हमारा क्या था?
और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम जो डिस्कस किए थे पहला रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कि हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। कमिंग टू द सेकेंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोमेल या मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। इट्स नॉट कैरामेल, इट्स कैलोमेल। मर्क्यूरी का दूसरा नाम है कैलोमेल, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। हम क्या करते हैं ना, KCl सॉल्यूशन को रखते हैं, क्लोराइड का सॉल्यूशन Hg2Cl2 मर्क्यूरी क्लोराइड एंड Hg को रखते हैं, मर्क्यूरी को भी रखते हैं एंड सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट करते हैं। ये प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम को क्यों यूज करते हैं आपको पता है, बिकॉज इट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। वो साधु है, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अच्छा है, ठीक है ना। वो हमें वही चाहिए था। तो अभी बात क्या है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है Hg लिक्विड, अंदर जो Hg है ना वो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, सॉलिड फॉर्म में रहता है। Hg इज ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म, है ना, आपको पता होगा। सो Hg लिक्विड जो है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Hg2Cl2 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, है ना। वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहा है ऐसे, है ना। एंड Cl माइनस कहाँ से, KCl में आपको पता होगा इसके अंदर क्या है, Cl माइनस सोल्यूशन है। K प्लस प्लस Cl माइनस रहेगा ना, तो Cl माइनस ऐसे बन जा रहा है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर यहाँ से यहाँ जाएगा कि यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ से पीछे आएगा, जैसे हाइड्रोजन का हो रहा था ना, H2 से H प्लस या H प्लस से H2, है ना। H2 से H प्लस होने पर ऑक्सीडेशन, +1 से 0 आने पर रिडक्शन, ये रिडक्शन, ये आपका ऑक्सीडेशन, है ना, ये हो रहा था। तो वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जितना भी देखते हैं जनरली रिडक्शन वाले लेते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन को हमको कुछ नहीं दिया, कौन सा रिएक्शन लेना है आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। आपको डाउट लगेगा सर ये क्या, कौन सा रिएक्शन लेंगे जब लिखते हैं तो हाफ H2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू H प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन लेंगे लिखने के टाइम में, या तो लिखने के टाइम में उल्टा वाला रिएक्शन लेंगे। कौन सा रिएक्शन लेंगे, आपको अगर कुछ ध्यान नहीं है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो सबसे बेस्ट होगा आप क्या लोगे, रिडक्शन वाला लोगे। सबसे बेस्ट वाला क्या लोगे, रिडक्शन, क्योंकि हमेशा दुनिया के लिए रिडक्शन ही सही है, ऑक्सीडेशन उल्टा है, समझ रहे हैं। सो यहाँ पे दोनों में से कौन सा रिएक्शन आप लोगे, रिडक्शन वाला लोगे। कौन सा रिडक्शन है, देखिए +1 0 से +1 ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, इसको नहीं लेंगे आप, इसको लेंगे दूसरा वाला +1 से 0, है ना। सो इसको हमेशा कंसिडर करते रहेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों चीज पॉसिबल, लेकिन किसको लिया गया है, ध्यान से देखिए किसको लिया गया है। Hg का चार्ज कितना है यहाँ पे, +1 होगा, आप निकाल के देखिए, निकालना जानते हो ना आप, कैसे निकालते हैं गाइस, H2Cl2 है ना। Hg का चार्ज आपको पता नहीं, x लोगे तो क्या होगा, 2 Hg है तो 2x + 2 इंटू क्लोरीन का कितना होता है -1, ओवरऑल कितना है 0, तो 2x = +2, x का वैल्यू कितना आ गया +1। तो Hg का चार्ज कितना है पहले से, +1, ऐसे निकालते हैं ना चार्ज, +1। अभी जब Hg लिक्विड हो गया अकेला तो कितना हो गया, 0 हो गया, तो रिड्यूस नहीं हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया। क्या हो गया गाइस, रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस वाला लेते हैं, हमको बताया ना जस्ट अभी, रिडक्शन इसके लिए सब कुछ है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन ही सब कुछ है। तो उसके हिसाब से हम लोग रिडक्शन ले लिए। तो वंस हमने रिडक्शन ले लिया तो आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या पढ़ा है, नॉन स्टिक क्वेश्चन पढ़ा है। क्या पढ़ा है, नॉन स्टिक क्वेश्चन। सो नॉन स्टिक क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, नॉन स्टिक क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे रिडक्शन के लिए तो हमें ऐसे कुछ दिखेगा, देखिए ऐसे दिखेगा। क्योंकि जब नॉन स्टिक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं हम लोग क्या करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन, ऐसे लिखते हैं ना, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय लॉग, क्या लिखते हैं, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय एनोड, ये लिखते हैं ना, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ऐसे लिखते हैं ना, यस। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल तो नहीं लिया आएगा, ये सिंगल यूनिट है ना, पूरा सेल नहीं है, सिंगल यूनिट है। तो सिंगल यूनिट के लिए वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई का जो चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ई का सेल के जगह में क्या लिख सकता हूँ, Hg2Cl2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Hg, ये वाला, ठीक है ना, Hg, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है ना। तो वैसे इधर भी ऐसे लिखेंगे सेल के जगह में, एन के जगह में कितना डालेंगे गाइस, वैल्यू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 से 0, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 1, सो एन के जगह में कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन है, ये लिक्विड, लिक्विड का आपको पता है प्योर लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन 1 दिया जाता है, और कौन बचा Cl माइनस, तो प्रोडक्ट के जगह में क्या लिखेंगे, Cl माइनस। बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है, इलेक्ट्रॉन को तो बारे में नहीं लिखेंगे, सॉलिड, सॉलिड का भी क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन 1। सो अभी क्या बचा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गया तो ऑब्वियसली ऊपर में का बचा Cl माइनस, अभी ही बचा है ना, देखिए समझ में आ रहा है, हमने क्या यहाँ पे एनालिस्टिक क्वेश्चन को अप्लाई करके रखा है।
ठीक है। वैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नॉन इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं ना, बहुत सिंपल है गाइस। मैं आपको बताया, जस्ट आपको बताया कि जब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन का कौन सा लोगे, हाइड्रोजन का रिडक्शन ही लोगे। तो अप्लाइंग नॉन इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन, नॉन इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन क्या होगा गाइस, आपको बताया कुछ नहीं दिया तो आप क्या करोगे, रिडक्शन वाला लोगे। रिडक्शन में क्या होता है गाइस, हाइड्रोजन जो था वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, हाफ H2 बनेगा। ये 0 +1 से 0। तो नॉन इक्वेशन अप्लाई कीजिए, रिडक्शन हो रहा है ना, ई सेल में यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ से कन्वर्ट हो रहा है H2 जैसे रिड्यूस हो रहा है ना, इज इक्वल टू, सेल तो नहीं है हाइड्रोजन है, ई नॉट का क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे H+ से लेके आप लिखोगे H2, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लिखोगे। एन कितना है यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन गैस है ना। जब हाइड्रोजन गैस होता है आप क्या लिखोगे, प्रेशर लिखोगे। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, इसके सामने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर हो जाएगा बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है, H+। दिस इज अ नॉन इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा इस H+H2 इज इक्वल टू E0 H+ बाई H2 माइनस 0.0591 लॉग ये बचेगा। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का पावर हाफ। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना जनरल लेते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, 1 atm ले लेते हैं, तो ऊपर में 1 ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा H+। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इस, ये तो 0 है ना हाइड्रोजन के लिए, E0 सेल जो है स्टैंडर्ड है क्या है, 0 है, माइनस 0.0591 लॉग 1 बाय क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm लेते हैं ना इसलिए 1 डाल दिया वहाँ पे, ठीक है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो लिया जाता है कितना लिया जाता है, 1 atm, देखिए 1 atm। कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है यहाँ पे, H+ का 1 मोलर लिया जाता है। तो अगर डाल देंगे तो अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आप पुट करेंगे यहाँ पे। तो पुट करेंगे तो अगर H+ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस नहीं हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं H+ बाई H2 इज इक्वल टू 0 हो गया, माइनस 0.0591 लॉग, ये जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, H+ टू द पावर -1, ये -1 सामने जा सकता है तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.0591 लॉग H+, है ना, ये आपका वैल्यू है। आप सॉल्व करेंगे तो, है ना, बट ओरिजिनल आप पुट करेंगे उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। दिस इज द ओरिजिनल नॉन इक्वेशन, ठीक है, कितना आसान है ना। सो हमने क्या पढ़ा है इसमें, दो टाइप ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, एक SHEC स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड द सेकंड वन इज कैल्विन या मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। दोनों में से सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करते हैं, हमारा SHE को यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है ना, बहुत वर्सेटाइल है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। देन इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स ये बहुत इजी है गाइस, हम जो भी इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं ना उसका टाइप्स है ना, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। 4 है टोटल, मेटल मेटल आयन, गैस आयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। 4 यहीं पे हैं, बहुत आसान है, आराम से आप वंस आप नॉन इक्वेशन समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, ये सब बहुत इजी हो जाएगा। आप अगर रटना शुरू करोगे तो आपको भगवान भी बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भूल जाओगे आप। सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली, ठीक है गाइस। यस, चलिए सबसे पहला क्या है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, है ना, मेटल एंड मेटल आयन, मेटल मतलब M, मेटल आयन मतलब Mn+, है ना, तो ऐसा है। सो क्या कर रहा है, देखिए दोनों दोनों पॉसिबिलिटी था यहाँ पे, आपको जैसे पता है M से वो कन्वर्ट हो सकता है Mn+ बाय रिलीजिंग N इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बन सकता है। या तो दूसरा पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे लिखा है Mn+ से M0, दोनों में से कौन लेगा, वो किसको लेगा, रिडक्शन वालों को लेगा, क्योंकि रिडक्शन ही जिंदगी है इसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। तो जब ऐसे लिख लिया आपने तो इसका आप क्या कर सकते हो, नॉन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो ना। आपको पता है नॉन इक्वेशन का क्या लिखना है, E इज इक्वल टू E0, गाइस यहाँ पे E0 होगा, ठीक है, नॉट मेंशन नहीं है, यहाँ पर भी E0 मेंशन नहीं है, यहाँ पे E0 मेंशन, अच्छा यहाँ पे E0 मेंशन नहीं है, डाल दिया, ठीक है। E इज इक्वल टू E0, छोटा मिस्टेक है ना, माइनस हम लोग क्या लिखेंगे 0.0591 डिवाइड बाई N, लॉग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन है, सॉलिड है, सॉलिड का 1 बाय प्रोडक्ट में कौन है, रिएक्टेंट में कौन है, Mn+,
एक्सक्यूज मी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर में लिखेंगे Mn+, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये Mn+ को ऊपर लेके जाएंगे। Mn+ को जब ऊपर लेके जाएंगे, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग, ऊपर जब चले जाएगा Mn+ टू द पावर कितना हो जाएगा, -1। -1 सामने चले जाएगा तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, वही है ना, देखिए, है ना। तो जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, नॉन स्टिक इक्वेशन अप्लाई करना है। हाइड्रोजन का दिखाया आपको, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड जैसे काम चलाएंगे, है ना। तो जस्ट हमने डिस्कस किया था, इसको हमने डिराइव किया था अभी, कहाँ पे, जस्ट यहाँ पे डिराइव किया था, है ना, डिराइव करके रखा हूँ, है ना। सो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तीसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, Fe2+ से Fe3+ हो रहा है, बट आप कैसे लिखोगे इसको, हमेशा Fe3+ Fe2+, क्योंकि आपको क्या चाहिए, SRP चाहिए, रिडक्शन वाला चाहिए। तो उसके हिसाब से क्या करोगे आप, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे ना, प्रोडक्ट में Fe2+ बाय रिएक्टेंट में Fe3+। कितना आसान है ना। तो लास्ट वाला भी ऐसे है, यहाँ पे देखिए AgCl से Ag का चार्ज +1, जैसे हमने Hg2Cl2 देखे थे ना मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, वैसे Hg2Cl2 का में AgCl है, दैट्स ऑल। Hg का जैसे +1 से 0 हो रहा था, अभी इसका भी +1 से 0 हो रहा है, सेम गाइस, ठीक है। वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में ये है Cl- बाय रिएक्टेंट में क्या है, सॉलिड है, सॉलिड का प्योर होगा 1 होगा, तो इसलिए आपका ये नॉन स्टिक क्वेश्चन है, समझ गए। ओके गाइस, यस, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो हमने ये वीडियो में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स पढ़ा एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ा। ओके, सो प्लीज नोट डाउन इन द नोट्स, ये सब एंट्रेंस के लिए आपको हेल्प होगा। ओके, विल गो टू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।